Okay, so today we'll talk about endoplasmic reticulum, and as the name indicates, endo, it means it's inside the cytoplasm, and it's a kind of network in the cell. And you must be knowing what are the various functions of the endoplasmic reticulum. It has a diverse functions in the cell. Uh, and it's comprised of two parts. One is smooth endoplasmic reticulum, another is rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum has different functions than the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum mainly synthesize proteins, and smooth endoplasmic reticulum has other functions like it synthesizes lipids. It helps in detoxification of drugs and other functions as well. We'll talk about those functions one by one. And first of all, let's talk about a bit history about the endoplasmic reticulum. It was first discovered in 1902 by the Italian scientist Imalo Verratti, and later on, the two scientists who had given significant contribution endoplasmic reticulum was Porter and Plaid, and they actually gave the electron micrograph of endoplasmic reticulum, and they found it like a network of strands throughout the cytoplasm. And they are the one who mentioned the key characteristics of endoplasmic reticulum and ribosomes. And in 1966, George Plaid generated a transmission electron micrograph illustrating the endoplasmic reticulum is studded with granules. And what were those granules? Those were ribosomes. So that was given by the Plaid in 1966, that that these endoplasmic reticulums are studded with the granular structures. And if you will see it in the electron microscope, you will see it as a granular structure, and those granular structures are the ribosomes studied on that rough endoplasmic reticulum. And in 1974, George Plaid further described structure of endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. These two scientists, that's Porter and Plaid, have given a significant contribution in study of endoplasmic. And endoplasmic reticulum is present in almost all the mammalian cells or eukaryotic cells, except some cells. It's not present in the red blood cells, because we know the red blood cells, and that too in mature red blood. Mature red blood cells are mainly responsible for the transport of the oxygen. तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट होता है रेड ब्लड सेल में. दैट्स वाई कि जो रेड ब्लड सेल है उसमें उसमें ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है प्रेजेंट. एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट इन रेड मैच्योर रेड ब्लड सेल न्यूक्लियस भी वहाँ पे नहीं होता है, दैट इट कैन एकोमोडेट मोर एंड मोर hemoglobin and can transfer oxygen efficiently in the body, so that more and more oxygen will be transported in the body. And it's not present in other cells, like ova में भी नहीं होता है, in embryonic early embryonic cells उनमें भी नहीं होता है. And resting cells, the cells which are not actively involved in the metabolism, or यू कैन से रेस्टिंग सेल्स जो होती है, इनमें भी उनमें भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है. एंड इट्स पोअरली डेवलप्ड इन सम सेल्स लाइक स्पर्मेटोसाइट्स एंड रेटिकुलोसाइट्स जो होती हैं सेल्स,
उनमें भी ये poorly developed होता है. Spermatocytes, you know, are the sperm sperm cells, and the reticulocytes are the cells which later on gives rise to the RBCs. तो उनमें भी ये ज़्यादा उनमें poorly developed होता है, और later on जब वहाँ से red blood cell बनती है रेटिकुलोसाइट से, मैच्योर रेड ब्लड सेल बनती है, तो फिर नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक. Okay, the endoplasmic reticulum is absent in the prokaryotic cells as well. Prokaryotic cells में we know that the organelles are not present in the prokaryotic cells. तो उनमें prokaryotic cells में भी ये present नहीं होता है. And the entire endoplasmic reticulum is enclosed by a continuous membrane and is the largest organelle of most eukaryotic cells. अगर आप देखी होगी सेल की ये पिक्चर, यू वुड हैव सीन दैट जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बाद ही होता है, न्यूक्लियस के बाद, एंड इट्स कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियस, एंड इट traverses most part of the cell. That means it's the largest organelle in most eukaryotic cells. And endoplasmic reticulum is an extensive system of a network of membrane enclosed branching tubules and cisternae that extends from the membrane cytoplasm. पता है the nucleus के साथ continuous होता है, and there are actually it has been divided into three main types जो बताए जाते हैं endoplasmic reticulum के. One is that cisternae like structure, दूसरा होता है vesicles, and the another one is the tubules. So they extend from the nuclear membrane throughout the cytoplasm, or it has been said that ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है न्यूक्लियस से बराबर सेल मेम्ब्रेन तक, it is continuous with the cell membrane. Okay, biogenesis of endoplasmic reticulum. As we know, what would be the main constituents of the endoplasmic reticulum? Simply, it's membrane. Membrane इसमें और क्या होगा? Proteins होंगे. So, membrane biogenesis is a multi-step process that involves mainly आपको दो चीज़ें बनानी हैं. एक तो आपको membrane lipids बनाने हैं and intrinsic proteins, जो इसमें proteins होंगे वो. That means मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में आपको यही चीज़ें सिंथेसाइज करनी है, then you would be able to give the make the endoplasmic reticulum. Then the addition of other components. Yeah, for example, there are some enzymes present on the endoplasmic reticulum, sugars present होते हैं, lipids present होते हैं, वो भी इसमें फिर ऐड होते जाते हैं, और आपकी जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बन जाता है. द इंसर्शन ऑफ प्रोटीन्स इनटू ईआर मेम्ब्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ द लिपिड्स. यानी पहले फॉर एग्जांपल इसकी मेम्ब्रेन बन गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, प्रोटीन्स उसके बाद आ जाते हैं. दैट मीन्स उनका इंसर्शन इंडिपेंडेंट होता है देन दैट ऑफ द लिपिड्स. यानी एक साथ लिपिड और प्रोटीन्स एम्बेड नहीं होते हैं ईआर मेम्ब्रेन में. Some proteins of the ER are formed by the ribosomes, and we know that कि जो कुछ proteins होते हैं वो खुद ER से ही ribosome से बनते हैं, और फिर वो later on became inserted into the membrane of the ER. तो biogenesis में simply आप याद रखोगे कि it's a multi-step process that involves synthesis of basic membrane lipids and intrinsic proteins. इसमें आपको, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इट्स मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होता है बाउंड ऑर्गेनली, और उसमें क्या होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगा जैसे मेम्ब्रेन में होता है, और देयर विल बी प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद इट. बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रेजेंट होंगे इसमें. और जो एंजाइम्स एंड शुगर्स है या जो प्रोटीन्स फिर इसमें एम्बेड होते हैं, दैट प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ द लिपिड सिंथेसिस. यानी अगर लिपिड पहले
बन गए, उसके बाद प्रोटीन्स इसमें इंसर्ट होते हैं. Okay, now if you want to isolate the endoplasmic reticulum from the cell, how will you do that? First of all, you have to homogenize the cell. Once you homogenize the cell, then you have to centrifuge it. Homogenize Homogenization क्या होता है? Homogenization means you have to rupture the cell with the help of, there are homogenizers present in the laboratory. आपने देखे मत होंगे, हम सेल को ब्रेक करते हैं, और यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ ब्लंडर जो घर में होते हैं, वैसा एक इक्विपमेंट होता है जिससे होमोजेनाइज करेंगे, सेल्स को ब्रेक करेंगे. आफ्टर देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट इट टू द सेंट्रीफ्यूगेशन. एंड वी नो दैट जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन रेट पे सेटल हो जाते हैं. एंड यू हैव टू सी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस सेंट्रीफ्यूगेशन पे आपके सेटल होंगे. एंड आफ्टर देन जब आप होमोजेनाइजेशन करोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके बाद क्या होगा, you will get those वेजिकुलर स्ट्रक्चर, यानी आपको सिस्टर्नी स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, बिकॉज जब आप रैप्चर करोगे, होमोजेनाइज करोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या सेल को, यू विल गेट दोज काइंड ऑफ वेजिकल्स, यानी गोल गोल स्ट्रक्चर आप मिलेंगे आपको. एंड उसके बाद यू हैव टू पुट इट टू द सेंट्रीफ्यूगेशन. और सेंट्रीफ्यूगेशन में आप क्या यूज़ करोगे, यू हैव टू यूज़ द सुक्रोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सुक्रोज आप यूज़ करोगे इसमें. सुक्रोज से क्या होगा, when you will use the sucrose, this means ये जो ट्यूब होगा, there will be gradient of increasing sucrose concentration. वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे sucrose की concentration कम होगी, when you will go down, the concentration of the sucrose will increase. So what will happen, the things which would be lighter, those will get settled in the lesser concentration of the sucrose, यानी जहाँ पे लेस कंसनट्रेशन सुक्रोज की होगी, वहाँ पे आपके जो हल्के हल्के जो वेसिकल्स होंगे वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे. एंड द हेवियर ones will go down in the concentration gradient. So once you will do that, once you will put it to the centrifugation, you will be able to get the two bands in the centrifugation. एक में आपको मिलेंगे rough endoplasmic reticulum, those will be studded with the ribosomes, and in the other part you will get the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, those will not have that granular structure. तो ऐसे आप इनको सेपरेट कर सकते हो. एंड once you will get those endoplasmic reticulums, अगर आप देखोगे तो ये जो endoplasmic reticulum आपको मिलेगा, vesicles, those will be exactly functional, and you can do some studies on them. जो आपको studies करनी होगी for your research purpose, you can do that. और वो वैसे ही फंक्शन करेंगे जैसे वो एक सेल में फंक्शन. Okay, we were talking about the centrifugation, and as I said, it's called the density gradient centrifugation. एक centrifugation होती है simple centrifugation, where you are not using any gradient for the centrifugation. For example, यहाँ पे आपने sucrose को use किया. Sucrose will act as a density gradient here. तो उसी की वजह से एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनेगा, जिसमें आपकी जो हल्की माइक्रोसोम्स, इट्स सिंपल सी बात है. जब वेसिकल्स पे राइबोसोम्स अटैच होंगे, राइबोसोम्स का अपना वेट होगा, तो वो ज़्यादा भारी होंगे एज कंपेयर टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या रहेगा, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहेगा, और जो रफ एंडोप्लाज्म. हाँ. So I was saying about the centrifugation of this. If you want to isolate the
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप उसको आइसोलेट कैसे करोगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ द होमोजेनाइजेशन, हैव टू होमोजेनाइज द सेल फर्स्ट। तो इसमें आप होमोजेनाइजर यूज़ करते हो, उसके बाद इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेंडर यू कैन से, जो यूज़ होता है किचन्स में, लाइक दैट उसी तरह का सेटअप होता है। उसके बाद जब इसको आप होमोजेनाइज करोगे, यू विल गेट द वेसिकल्स, बिकॉज इट विल नॉट रिमेन इन द ट्यूबुलर फॉर्म में नहीं रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यू हैव टू send it to the centrifugation, अब centrifugation करनी पड़ेगी इसको, and that too you have the use density gradient centrifugation। एक होता है simple centrifugation where you are not using density gradient, और दूसरा होता है density gradient centrifugation जिसमें आप एक gradient यूज़ करते हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि gradient of increasing sucrose concentration, that means अगर आप इसमें देखोगे you will have like यहाँ से यहाँ से यहाँ की तरफ इंक्रीज हो जाएगा आपका ग्रेडियंट, यहाँ पे कम ग्रेडियंट होगा sucrose का, that means concentration of sucrose will be less here and it will be more here. Once you will put those vesicles in that tube और फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, what will happen, जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे, हेवियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे, वेसिकल्स होंगे, दोज विल बी सेटल्ड एट द हायर सक्रोज कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे ज़्यादा ग्रेडियंट होगा वहाँ पे वो सेटल हो। क्यों सेटल होंगे? बिकॉज दे विल बी हैवियर, दे विल हैव राइबोसोम्स अटैच्ड विद देम। जब राइबोसोम्स उनके साथ अटैच्ड होंगे, डेफिनेटली सिंपल सी बात है, तो हेवी होंगे एज कम्पेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एक अलग बैंड बनाएगा और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अलग बैंड बनाएगा। दैट वे यू वुड बी एबल टू गेट द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अलग अलग। ओके, सो ये यही है जो मैंने बताया आपको, दैट इट्स द सेम थिंग विच आई सेड, कि क्या आपको करना है और हाउ विल यू गेट, यू हैव टू यूज़ द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन आप करोगे, जो होमोजेनाइज क्या करोगे, यानी आपको सेल्स लेनी है, आपको उनको ब्रेक करना है। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द सेल सैप। जो आपको सेल सैप मिलेगा वो फिर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है और वहाँ से आपको ये मिलेंगे। यू मे हैव टू यूज़ अ सीरीज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, एक ही सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा। यू मे हैव टू यूज़ सीरीज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशंस, देन यू वुड बी एबल टू गेट दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दैट टू इन द वेसिकुलर फॉर्म, वेसिकल फॉर्म में आपको मिलेंगे। दोज विल नॉट बी इन दैट ट्यूबुलर और सिस्टर्नल फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। And what is the structure of the endoplasmic reticulum? And structure, as we know, जैसे मैंने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कंटिन्यूस होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट वन एंड एंड जॉइन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द अनदर एंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ दूसरे एंड पे ये होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इट्स कंटिन्यूस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इट्स कंटिन्यूस विद दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड यहाँ पे आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सो कंटिन्यूस थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन के साथ और न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूस है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। एंड और एक चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हाउ इट्स हेल्ड इन द, how it's held in the cell, it's held by the cytoskeleton। cytoskeleton क्या होता है? cytoskeleton cells में होते हैं, those are kind of actin fibers होते हैं, actin protein के बने होते हैं fibers, उन्हीं से या बाकी जो वहाँ पे दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं, लाइक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं,
जैसे आपने देखा होगा सेल साइकिल में वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वैसे ही सेल में बहुत सारे जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपने प्लेस पे रहता है। मींस अगर ये कहीं किसी जगह पे मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये वहाँ पे कैसे अपनी पोजीशन पे रहेगा? इट्स बिकॉज ऑफ दैट साइटोस्केलेटन। The endoplasmic reticulum remains bound by the phospholipid membrane, जो मैंने बताया inside the membrane. Okay, so what I was saying, we were talking about the structure of endoplasmic reticulum. तो structure कैसा होता है इसका? Simply प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसका ल्यूमिन प्रेजेंट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसका अंदर ल्यूमिन प्रेजेंट द मेम्ब्रेन, और इसमें जैसे डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसमें प्रेजेंट होगा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एज आई सेड कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है इट्स कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियस। अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस डायग्राम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर इज द न्यूक्लियस एंड यू विल सी द न्यूक्लियर एनवलप जो है उसका जो ल्यूमिन है इट इज कंटिन्यूस विद दैट, एंड it's continuous here with the cell membrane as well. So that's what I was trying to say अभी जो मैं बता रहा था. And all these structures, as I said, tubules and sacs are held in their place by the cytoskeleton. Cytoskeleton cell में present होता है, would be made up of actin fibers and tubules, tubular network जो होता है सेल में, उसकी वजह से जो है एंडोप्लाज्मिक में स्पेस में रहता है. एंड द ER remains bound by a phospholipid membrane. Inside the membrane, इस मेम्ब्रेन में अंदर से क्या होगा, इट वुड फ्लूइड फ्लूइड स्पेस, एंड उसको हम स्पेस या ल्यूमिन बोलेंगे. एंड दैट ल्यूमिन इज कंटिन्यूस विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस. जो मैंने बताया अभी, जो ल्यूमिन होगा दैट विल बी कंटिन्यूस विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और जो ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वी रिप्रेजेंट इट विद ER एज वेल. तो इसमें इट कंटेन्स मैनी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. triglycerides, phospholipids and cholesterol will be present in the membranes of ER, and it would contain many enzymes as well, like sterases, NADH cytochrome reductase, glucose 6 phosphatase, glycosyl transferase, and magnesium activated ATP. All these enzymes will be present in the ER. और ये किस चीज़ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और लिपिड्स प्रेजेंट होंगे इसमें. एंड इट्स अ यूनिट मेम्ब्रेन, दैट मीन्स एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, लाइक दैट ऑफ न्यूक्लियस, या इसकी तरफ इस डबल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा. एंड जो ये मेम्ब्रेन है इट विल बी कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल. और in electron micrograph, the cross section of plasmic ray appears as two parallel membranes separated by a narrow light nanometer wide. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे इट लाइक आपको दो मेम्ब्रेन्स लगेंगी, यहाँ से एक, देयर विल बी स्पेस इन बिटवीन. तो वो जैसे यहाँ पे यहाँ से एक मेम्ब्रेन है, यहाँ से एक मेम्ब्रेन, वो बीच में जो स्पेस है इसको ल्यूमिन बोलेंगे. तो यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ जो अंदर वाली स्पेस होती है इसको ल्यूमिन बोलते हैं. एंड एज आई सेड देयर विल बी मेनी एंजाइम्स लाइक ग्लूकोज ट्रांस like sterases, NADPH cytochrome reductase, glucose 6 phosphatase, glycosyl transferase, magnesium activated ATP present होंगे. And
You have to remember that जो endoplasmic reticulum होता है, it will be of two types. One is the smooth endoplasmic, another is the rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum doesn't have the ribosomes studded on them, और जो rough endoplasmic reticulum होता है इस पे ribosomes attached होते हैं, and those ribosomes are attached towards the cytoplasmic side, यानी lumen की तरफ present नहीं होंगे, inside of endoplasmic reticulum present नहीं होंगे, they will be towards the cytosolic phase, यानी cytosolic side की तरफ वो present हो. And तो मेनली दो तरह के होते हैं, ये आपको याद रखना है. प्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं होंगे एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शन, एंड रफ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो एंड those have different functions, mainly the protein modifications and protein synthesis. Ribosomes, you must have read it in the molecular biology. जो ribosomes होते हैं वो क्या किस में help करते हैं? Protein synthesis. तो जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होंगे, दैट विल हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेटली. और एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट they are divided into the three types, like one is called the cisternae, another are called the vesicles, and the tubules. Those three can be present at a time in the cell. Yeah, on the basis of morphology, endoplasmic reticulum made up of three types of structure. तीन तरह के structures present होते हैं. One is called the cisternae, another is called the vesicle, and the tubules. Cisternae क्या होते हैं? These are long flattened sac-like unbranched tubules present होते हैं, arranged parallel. जो आपने अभी देखा, जो parallel attached होते हैं आपस में flattened sacs, उनको बोलते हैं हम cisternae. And each tubule is about 40 to 50 micrometer thick होता है वो. And vesicles क्या होता है? As the name indicates vesicles होते हैं rounded or oval structure, and those can be 25 to 500 micrometers thick in diameter, and they are surrounded by the unit membrane, often occurs isolated cytoplasm, यानी वो यूजुअली सेपरेट होते हैं इनसे करने से. अगर आप देखोगे सेल का स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये है दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. और यहाँ पे जो बन जाते हैं वेजिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो होते हैं वेजिकल्स, यानी स्फेरिकल शेप्ड होते, दोज आर कॉल्ड वेजिकल्स. और जो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टर्ने. तो तीन तरह के ये हैं. One is the cisternae, another is the vesicle, and third type is the tubular one. जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, cisternae will be like this, and the vesicles will be like those spherical structures, and the tubules जो होंगे वो इस तरह के present होंगे सेल में. अब जो सिस्टर्ने होते हैं इसके बारे में हमने बोला, और जो वेजिकल्स होते हैं दे आर यूजुअली राउंडेड और ओवाइड स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, एंड 25 to 500 माइक्रोमीटर थिक इन डायमीटर, सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन. एंड जो ट्यूब्यूल्स होते हैं दीज आर ऑफ डाइवर्स शेप्स, इनकी कोई एक शेप नहीं होती है. जैसे सिस्टर्ने होते हैं लॉन्ग फ्लैटेंड सैक, और पैरेलल अरेंज्ड होते हैं बंडल्स जैसे. लेकिन जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनकी इरेगुलर शेप होते हैं. दे हैव डाइवर्स शेप्स, and they are 50 to 100 micrometer in diameter. These are found in cells that are active in synthesis of glycerides. तो किन में देखा जाता है? उन सेल्स में देखा जाता है जो ग्लिसराइड्स बनाते हैं. These are also found in big pigmented epithelial cells of retina,
जो रेटिनल सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म विटामिन ए, बिकॉज वी नो दैट विटामिन ए इन्वॉल्व इन द विजन प्रोसेस। तो रेटिना में जो प्रेजेंट होगा तो ये वहाँ पे उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये भी। अगर हम मिला के इन तीनों कंपोनेंट्स को देखेंगे, आर बाउंडेड बाय 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिक मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जो मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, मिडल थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जैसे आपने जो हमने पढ़ा कि 3 जो लेयर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वैसा ही इनका भी स्ट्रक्चर होगा प्लाज्मा में। पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज़ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ईआर एंड न्यूक्लियस। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिटवीन द ईआर एंड वाली स्पेस जो यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। There is close relationship between perinuclear space, cisternae and cell sap, यानी these all three are interconnected। वो क्या होता है, जैसे इसमें आप देखोगे जो मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगी, इट विल बी कंटिन्यूस विद द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, तो उसके साथ ही कंटिन्यूस होगी। ठीक। और जो मैंने बताया कि ये 3 तरह के होते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स अक्रॉस द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। पहला तो होता है सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, जैसे मैंने बताया, दोज विल बी स्टडीड विद द राइबोसोम्स। तो जब उन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन्स, और जो वो प्रोटीन्स बनते हैं दोज विल बी ट्रांसलोकेटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल थ्रू द सिक्रीटरी पाथवे उसको बोलते हैं। उसकी वजह से जो आपकी प्रोटीन को आप डेस्टाइन कर सकते हो, यू विल डेस्टाइन दोज प्रोटीन टू द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द सेल। और वो कहाँ पे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो वहाँ पे सिंथेसिस होगा एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ दोज सिक्रीटरी प्रोटीन्स अक्रॉस द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो आप प्रोटीन्स बनाते हो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कैसे? जब वो प्रोटीन्स बनेंगे दोज विल बी कैरीड थ्रू आउट दैट ट्यूबुलर नेटवर्क। जो ट्यूबुलर नेटवर्क होगा, फॉर एग्जांपल पहले ये सिस्टर्न स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके बाद वेजिकल्स प्रेजेंट हो गए। तो अगर यहाँ से एक वेजिकल बड ऑफ होता है, उसमें प्रोटीन चला जाता है, तो वो प्रोटीन फिर ट्यूब्यूल्स पर चला जाता है, उस इसमें से फिर वेजिकल बनता है, देन दैट वेजिकल गोज टू द प्लाज्मा में। तो वहाँ पे अगर प्रोटीन आपका कोई होगा जो आपको एम्बेड करना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो फाइनली वो चला जाता है और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है। और क्या चीज़ होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? इट हेल्प्स, इट एड्स इन द फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक, यानी फोल्डिंग, जो आपकी फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, बिकॉज वी नो दैट पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, देन यू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स की होती हैं, लाइक बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती हैं, फॉस्फोरिलेशन होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है, देयर आर अदर modifications of the protein, those are taking place in the rough endoplasmic reticulum as well, यानी उस चीज़ में भी ये हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स ऑन द साइटोसोलिक साइड ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? फॉस्फोलिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज यू नो दैट
फॉस्फोलिपिड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो उनको ये सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करता है, और वो that occurs because of smooth endoplasmic reticulum. You have to remember that. Mainly आप याद रखोगे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, वहाँ पे मेनली प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, और प्रोटीन्स को डेस्टाइन करना होगा टू डिफरेंट लोकेशन, दैट ऑकर्स देयर. एंड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स जो बनते हैं, that occurs in the smooth endoplasmic reticulum. What are the other functions of the smooth endoplasmic reticulum? Storage of calcium ions also occurs in the smooth endoplasmic reticulum, और carbohydrate metabolism जो होता है, that also occurs in the plasmic reticulum, or detoxification of drugs also occurs because of that smooth endoplasmic. तो मेनली प्रोटीन का जो पार्ट है दैट ऑकर्स इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और बाकी जो चीज़ वो होती हैं प्लाज्मिक लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, और स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स all occurs in the, they have different functions. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट विल बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रफ एंडोप्लाज्मिक. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उस पे राइबोसोम्स विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन देम, and that's why they are called as smooth, because their surface is, that's why they are called as smooth endoplasmic reticulum. And जो rough endoplasmic reticulum होंगे उनमें राइबोसोम्स विल बी स्टडीड ऑन देम, तो उसकी वजह से उनकी जो अपीयरेंस है दैट विल बी ग्रैन्युलर एंड और रफ, तो उसकी वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम पड़ा. एंड और एक चीज़ आप याद रखोगे, जो ये राइबोसोम्स होते हैं इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोज विल बी टुवर्ड्स द साइटोसोलिक फेज, यानी इनसाइड, यानी ल्यूमिन की तरफ. जो ल्यूमिन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें ये प्रेजेंट नहीं होंगे. दे विल बी प्रेजेंट ऑन द टुवर्ड्स द साइटोसोलिक फेज, यानी जो साइटोप्लाज्म की तरफ फेस होगा उसी पे जो है ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हो. तो इट वाज सिंपली आपको याद रखना है कि दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किस बेसिस पे इनको ये नाम पड़ा? रफ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट गिव्स देम रफ अपीयरेंस, और स्मूथ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको एक ग्रैन्युलर भी बोला जाता है. एक ग्रैन्युलर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ग्रैन्यूल्स कौन से होंगे? वो दोज विल बी राइबोसोम. Okay, so you can see here in the diagram कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम को आप अटैच होंगे, those will be towards the cytosolic phase. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जैसे यहाँ पे है नीचे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, they will not have those ribosomes attached to it. What I said कि जो ribosomes होंगे, those will be towards the cytosolic phase of the ER membrane. साइड नहीं प्रेजेंट होंगे, towards the outer side, यानी cytosolic phase की. हमने देखा कि it would be of two types, smooth and rough endoplasmic reticulum. Now we'll talk about the function one by one. In smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum पे ribosomes नहीं होंगे, and those will be 500 to 1000 angstrom long usually होते हैं, and they will commonly present in the cells connected with steroid and lipid biosynthesis and carbohydrate metabolism. बताया कि lipid synthesis होगा इसमें, biosynthesis and carbohydrate metabolism. Different cells may contain different amount of smooth endoplasmic reticulum. ये क्यों होगा? Why would different cells have different amount of smooth plasmic reticulum? This is simple, depending on the function, nature and function. For example, if you
if you will see the endoplasmic reticulum of the liver cell, because they have to secrete some enzymes, यानी जो सेल होगी जिसको बहुत सारे लिपिड्स सिंथेसाइज करने होंगे या बहुत सारे एंजाइम्स बनाने होंगे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होंगे. In that cell you will have different amount of smooth endoplasmic reticulum, यानी जो सेल जिसकी जैसी फंक्शन होगी जिस सेल की, उसमें वैसा ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेल को ज़्यादा लिपिड बायोसिंथेसिस करना है सेल में, अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी मोर. और अगर किसी सेल को ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, उसमें जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा. तो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड फंक्शन, जो अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिफरेंट होगा इन डिफरेंट सेल. In certain cell types, smooth endoplasmic reticulum plays an important role in the synthesis of steroid hormones from cholesterol. तो कुछ सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, यानी जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स आपको बनाने होंगे, जो सेल्स फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, उनमें क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी मोर. एंड दे व्हाई वुड दे सिंथेसाइज दैट स्टेरॉइड हार्मोन? अगर आपने लिपिड बायोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, देयर प्रीकर्सर इज कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक और फंक्शन है इसकी, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स. जो हमारी लिवर सेल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल होता है. तो ये फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो उसी की वजह से होते हैं. यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल्स occurs because of the smooth endoplasmic reticulum, and you must have learned about during the muscle contraction sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum, that why its name is like this, because it sequesters or it regulates the calcium and concentration cytoplasm, या इसमें ज़्यादा जो कैल्शियम होता है वो प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स. अगर आपने कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. दैट्स आल्सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो वहाँ पे वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन की वजह से रेगुलेट करता है मसल कंट्रैक्शन को इन स्ट्रिएटेड मसल. तो दैट्स द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मेनली ये चीज़ एटलीस्ट आपको याद रहनी चाहिए कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पहला तो है प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन. इसकी वजह से होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज अगर पहले इस जो पहला पोर्शन होता है यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर वहाँ से प्रोटीन बना, उसके बाद वो चला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके बाद वेसिकुलर फॉर्म में, देन इट गोज टू द अदर लाइक गोल्जी एपैरेटस. तो ये सिक्रीटरी पाथवे हमें आगे पढ़ना है, तो मैं उसी टाइम ये पढ़ाऊँगा, यहाँ पे अब कंफ्यूजन नहीं करना है. तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ पे याद रखोगे, इसकी वजह से होता है. that also takes place because of this smooth endoplasmic reticulum. स्टेरॉइड जो मैंने बताया अभी, स्टेरॉइड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें सारी होती हैं बिकॉज ऑफ द एंडोप्लाज्म. नाउ अगर हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स कैसे होगा. Smooth endoplasmic reticulum provides route of transport of metabolites as proteins within the cell through formation of vesicles that transfer proteins to various locations. यानी पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगा, उसके बाद वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो रूट होगा, एंड आफ्टर देन इट विल गो टू द गोल्जी apparatus, और उसके बाद वो बाकी सेल में
डिस्ट्रीब्यूट होता है. लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्ट्स द प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन rough ER to Golgi apparatus and other parts of the cell. Like let me see, we have picture available here. जैसे फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन बना तो वो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, देन के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके बाद प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो उसके बाद वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से में चला जाएगा, देन इट विल गो इन द वेजिकुलर फॉर्म, जो बर्ड ऑफ होंगे यहाँ से, देन इट विल गो टू द गोल्जी apparatus. इसके बाद गोल्जी apparatus प्रेजेंट होता है, देन गोल्जी apparatus से इट विल बी destined टू अदर लोकेशंस ऑफ द सेल. तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं. Okay, now the other thing which occurs because of this endoplasmic reticulum is the steroid metabolism. Steroid metabolism, steroid जैसे आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल will act as the precursor, और उसकी वजह से क्या होगा, जो steroid hormones हैं those will be formed here in endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum plays a role in steroid metabolism. Many enzymes present in membrane of plasmic reticulum have a key role in the synthesis of cholesterol, the precursor of steroid hormones and bile acids. और जो हमने अभी और एक फंक्शन बताया कि रिलीज, अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, वो भी इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. So it stores the calcium in the cytoplasm of striated muscle, जो हमने अभी बताया, इस muscle contraction और relaxation में help करता है. That's why in that place the striated muscles is called as sarcoplasmic. लिपिड मेटाबॉलिज्म इसकी वजह से होता है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लिसराइड्स एंड स्टेरॉइड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल takes place in smooth endoplasmic reticulum in the special organelles called spherosomes present in the cells of endosperms, cotyledons of seeds. उनमें क्या होता है, ये synthesis of fatty acids, glycerides सारा उसी में. Phospholipid biosynthesis is largely confined to the membrane of smooth endoplasmic reticulum in collaboration with Golgi complex. जो phospholipid biosynthesis होता है, that's used for the membrane production, यानी आपको membrane बनानी है, that also occurs in the endoplasmic reticulum. In the liver, smooth endoplasmic reticulum is abundant in hepatocytes and is involved in the production of lipoproteins. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है. वो कैसे करता है, बिकॉज जो ग्लाइकोजन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट. अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी, एट दैट टाइम दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ द हार्मोन दैट्स कॉल्ड ग्लूकागॉन. तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. that glucose 1 phosphate will be converted to glucose 6 phosphate, और जो वो एंजाइम होता है glucose 6 phosphatase, that will convert this glucose 6 phosphate into glucose and phosphate that's present in the smooth endoplasmic reticulum. That's why we are saying that it takes place that endoplasmic reticulum called in the carbohydrate. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है, बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट, और देन लेटर ऑन ग्लूकोज विल बी यूज्ड इन द बॉडी. यानी कब होगा ये मैकेनिज्म, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में कम होगी, उस टाइम जो लिवर का ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू द ग्लूकोज एंड द फॉस्फेट with the help of the enzyme that's glucagon की वजह से वो होगा. और ये है पाथवे जो होगा, और जो एंजाइम प्रेजेंट है ग्लूकोज 6 phosphatase, that is there are other enzymes of carbohydrates metabolism, जैसे amylase है, glucuronidase है for example. Those are the enzymes that are also present in the endoplasmic reticulum.
जिनकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स यू मस्ट बी नोइंग, वो क्या होते हैं, दोज आर द शुगर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकस एंड फ्लूइड्स। जो होता है जॉइंट्स में, उनमें यूजुअली प्रेजेंट होता है ग्लूकोरोनडेस, या सॉरी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स यूजुअली वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, इन द फ्लूइड्स ऑफ म्यूकस इन जॉइंट्स जो होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। These are sugar molecules, and glucuronidase क्या करता है, it breaks down the complex carbohydrates, and these are the enzymes, and these enzymes are, where are these present, these are present in the smooth endoplasmic reticulum। तो smooth endoplasmic reticulum ये चीज़ें करता है। The other function, the last function I think it over after then, जो दूसरी एक फंक्शन है, that is the detoxification of toxic chemicals also occurs in the smooth endoplasmic reticulum। और यूजुअली अगर आप लिवर सेल्स देखोगे, वहाँ पे भी बहुत जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो वहाँ पे डिटॉक्सिफिक, लॉट ऑफ इथेनॉल, उसकी वजह से टॉक्सिफिकेशन हो सकती है, तो उन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in detoxification of a variety of xenobiotics such as barbiturates, ethanol, aspirin and petroleum products। फॉर एग्जांपल जो भी आप लोगे तो उनको डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन जनरली टेक्स प्लेस इन लिवर सेल। एस्पिरिन अभी कोविड में भी यूज़ हो रहा है, ट्रम्प को भी दिया गया था ये मेडिसिन। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन सो इसी की वजह से होती है कि इसकी वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है, देयर आर सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट देयर, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग एंजाइम्स और ऑक्सीजनेसिस। जैसे आपने पढ़ा होगा साइटोक्रोम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, उनकी वजह से जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये कैसे होता है, बिकॉज दे मेक देम मोर वाटर सॉलेबल। यानी जो भी फॉर एग्जांपल आप जो टॉक्सिक केमिकल होगा वो आपकी बॉडी में चला जाएगा, तो आप ये क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उनको ऑक्सीजन उनको ट्रांसफ़र होगा, देन दे विल बिकम मोर वाटर सॉलेबल। जब वो ज़्यादा वाटर सॉलेबल बनेंगे, दे विल बी इजीली एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, उसकी वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। कैसे, तो नटशेल में क्या मैकेनिज्म होता है, नटशेल में ये होता है कि जो टॉक्सिक केमिकल हम अंदर लेते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट रेंडर्स देम मोर वाटर सॉलेबल, तो उनको ज़्यादा वाटर सॉलेबल बनाता है, और जब ज़्यादा वाटर सॉलेबल बनते हैं तो उसकी वजह से फिर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। जैसे आपने देखा होगा the enzymes present in the smooth endoplasmic reticulum help in converting lipids and other hydrophobic compounds to water soluble form for easy। जो मैंने बताया यानी इसको वाटर soluble बनाता है, उसकी वजह से जो है ये बाहर चला जाता है, यानी टॉक्सिक कंपाउंड जो होगा वो बॉडी से बाहर निकले। अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट आउट फ्रॉम योर बॉडी अनलेस यू मेक इट वाटर सॉल्युबल। एक्सक्रीशन की वजह से या थ्रू स्वेट या बाकी चीज़ की वजह से, फिर देन कैन expel it from your body। जो अब ये ऑक्सीडेस एंजाइम सिस्टम होता है, इसकी वजह से ये मेनली होता है, जैसे मैंने बताया साइटोक्रोम P450 एज एन इम्पॉर्टेंट रोल डिटॉक्सिफिक ड्रग्स। साइटोक्रोम P450 में अगर आपको पता होगा, इट्स एन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग इट्स फॉर्म व्हेन इट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट। तो ये क्या करता है, अपनी आप को रिड्यूस करता है, दैट मीन्स फेरिक से ये फेरस बनाता है, और जो भी कंपाउंड होगा उस पे ये फिर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। लाइक द रिड्यूस्ड साइटोक्रोम P450 विल बाइंड ऑक्सीजन, जब ये रिड्यूस होता है वन एटम oxidize the substrate to convert the
ferrous form to ferric form, यानी Fe2 positive to Fe3 positive, and the other atoms of oxygen is used to oxidize the drug with the liberation of one molecule of water. वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, उसकी वजह से ये वाटर सॉल्युबल बनता है और उसकी वजह से ये बाहर निकल बॉडी से। अगर आप यहाँ पे देखो साइटोक्रोम P450, तो ड्रग इसके साथ मिल गया, इट विल ferrous form. Cytochrome P450 binds the drug, or with the help of the enzyme cytochrome P450 reductase, that will be also present there in the smooth endoplasmic reticulum की जो एंजाइम है, और उसकी वजह से जो है reduced form of cytochrome P450 और बाउंड ड्रग जो है इसके साथ फिर ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ऑक्सीजन की वजह से देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर, और वाटर की जो है वाटर सॉल्युबल बनेगा वो जो भी ड्रग होगा, एंड दैट विल बी एक्सक्रीटेड or that will be released from the body. Now a little bit more information, what are the other functions of the smooth endoplasmic reticulum? That is, it helps in the exchange of materials between nucleoplasm and cytoplasm. In nucleoplasm or साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज मटेरियल जो होता है दैट आल्सो ऑकर्स बिकॉज ऑफ प्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अगर आपने ये जो प्लांट सेल्स में होते हैं, इन प्लांट सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस्टैब्लिशेस लिंक बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स थ्रू पिट्स एंड प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स जो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनमें जो लिंक एस्टैब्लिश होता है दैट आल्सो ऑकर्स बिकॉज ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स। जो सिंथेसिस और रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है दैट आल्सो ऑकर्स because of smooth endoplasmic reticulum, and it also acts as a surface area for the action and storage of enzymes and their products. यानी एंजाइम्स वहाँ पे स्टोर होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे स्टोर होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेनली आप ये चीज़ें याद रखोगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या काम करता है। ब्रॉडली इट सिंथेसाइज लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स बनाता है, स्टीरॉइड्स बनाता है, इट मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इट एड्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये थोड़ी बहुत और डिटेल थी इसकी, ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज कैसे करता है, स्टीरॉइड सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाता है। दैट वाज ऑल अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड विल टॉक अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द